بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہومیوپیتھ ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر اپنے چینل ہومیوپیتھی ہیون سے۔ آج ہم بات کریں گے میل آرگن سائز کمپلیکس پر۔ آج کل نوجوان ایک نفسیاتی مرض کا شکار ہیں، وہ ہے مردانہ آرگن کا سائز بڑا ہونا چاہیے تاکہ اپنی بیوی پر مردانگی کا روب جھاڑ سکیں، بیوی کو درد و تکلیف ہو ان کی بلا سے، جس فیل سے عورت کو تکلیف ہو اس ایکٹیویٹی میں وہ خوش ہوگی، ہو سکتا ہے وہ اس کو بے دلی سے کرے، اس کی روح کے ساتھ نہ کرے اور نفرت کرنے لگے۔ یاد ہے کہ میرا آرگن چھوٹا یا بڑا ہونا سیکس لائف اور سیکس انجوائمنٹ کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اتنا ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اس کا چھوٹا یا بڑا ہونے کی مین وجہ جنیاتی ہوتی ہے۔ کچھ وجوہات اس موقع پر انٹرکورس کے دوران خون کی گردش کا کم یا زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ چھوٹا یا بڑا ہونے میں خاندان کی ہسٹری کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ اس پر آبا و اجداد کے جینز سائز پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر ماحول اور علاقہ، ایریا یا ملک جہاں وہ رہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں میٹر کرتا ہے۔ کچھ ممالک میں یہ سائز ایوریج سے زیادہ ہوتا ہے، کچھ ممالک میں یہ ایوریج سے بہت کم ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اپنی اپنی جگہ سیکسول لائف سے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں اولاد پیدا کرنے میں اور اولاد کی پیدائش میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رہن سہن، آپ کی خوراک، گھر کے حالات، ٹینشن، انگزائٹی بھی اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ پانی کی اوز گہرائی عام طور پر 7 سے 10 سینٹی میٹر یعنی 2.7 سے 4.5 انچ کے درمیان ہوتی ہے، تاہم عام تغیرات کی ایک وسیع رینج ہے، اور گہرائیاں فرد سے دوسرے شخص میں مختلف ہو سکتی ہیں۔ جنسی جوش اور بچے کی پیدائش کے دوران نام نانی پھیلنے اور سکڑنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ہم اس کی چوڑائی کی بات کریں تو یہ 1.9 سے 2.5 انچ تک ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے اندرونی قطر کی بات کریں تو یہ پھولنے کے بعد یہ 0.94 انچ سے 2.5 انچ تک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کی توسیع کی بات کریں، جنسی حوصلہ افزائی کے دوران خون کے بہاؤ، پٹھوں میں نرمی کی وجہ سے نام نہانی لمبائی اور چوڑائی میں پھیل سکتی ہے، ممکنہ طور پر سائز میں دگنا ہو سکتی ہے۔ بنیادی علاج میں وجائنا کا سائز اور شکل جنسی جوڑ ہمدستری کے دوران کافی حد تک مختلف ہو سکتی ہے۔ وجائنا شادی کے بعد، حمل کے بعد لوز یا بڑی ہو سکتی ہے۔ اس کو ٹائٹ اور تنگ کرنے کے لیے پٹری کے پانی میں دھویا جائے یا پٹری کا پاؤڈر اور ویزلین میں مکس کر کے اندر اور باہر لگایا جائے تو اس میں سائز میں کافی فرق پڑ سکتا ہے اور خاوند بھی خوش ہو سکتا ہے۔ اسے تناسل کے سائز کا تصور اور خوشی پر اس کے اثرات پیچیدہ ہیں۔ جسمانی اور نفسیاتی دونوں معامل متاثر ہوتے ہیں۔ اگرچہ کچھ مرد اسے تناسل کی خواہش میں اضافہ یا مردانی کے معاشرتی تاثرات کے لیے بڑے عضو تناسل کی خواہش کر سکتے ہیں۔ عضو تناسل کے سائز اور ساتھی کو خوشی فراہم کرنے کی صلاحیت یا فرد کی طرف سے لذت کے تجربے کے درمیان کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ یہ خیال کہ بڑا عضو تناسل زیادہ خوشی کے مترادف ہے ایک عام غلط فہمی ہے، اور بعض صورتوں میں اگر مرد اپنے سائز کے بارے میں ناکافی محسوس کرتے ہیں تو نفسیاتی مسائل کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ جسمانی عوامل کی بات کریں، یاد ہے کہ سائز اور خوشی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یاد ہے کہ سائز اور خوشی کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے، اس خیال کی تائید کرنے کے لیے کوئی سائنسی ثبوت بھی نہیں ہے کہ عضو تناسل کا سائز باہر از مرد یا اس کے ساتھی کے لیے خوشی سے تعلق رکھتا ہے۔ جنسی لذت ایک پیچیدہ تجربہ ہے، اس میں عضو تناسل کے سائز سے زیادہ مختلف عوامل شامل ہیں۔ سائز مختلف باشمول تکنیک، خاصیت اور جذباتی تعلق بہت اہم ہے۔ وجائنا کی اناٹمی کا بھی اثر ہوتا ہے۔ وجائنا انتہائی قابل اطلاق ہے اور عضو تناسل کے سائز کی ایک وسیع رینج کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے، اور خوشی کا تعلق اکثر کلائٹورس کے محرک سے ہوتا ہے۔ اگر نفسیاتی عوامل کی بات کریں، سماجی دباؤ، میڈیا کی تصویر کشی اور ثقافتی اصول اکثر عضو تناسل کے سائز پر لانے اور جنسی صلاحیت کی علامت کے طور پر زور دیتے ہیں، جو عدم تحفظ اور پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں، جس سے پریشانی یہاں تک کہ ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی حالت میں یعنی بعض اوقات چھوٹے عضو تناسل کے سنڈروم بھی کہا جا سکتا ہے۔
नाअहली का खौफ हो सकता है, कुछ लोग नाकाफी महसूस करते हैं या अपने साथियों को मुतमिन करने की अपनी सलाहियत के बारे में फिक्रमंद हो सकते हैं और अपने उज़र तनासुर को बहुत छोटा समझते हैं। अगर इसकी वजूहात की बात करें, सकाफती मेयारात मलानी के बारे में सकाफती रवैये और अकायद मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस पर असरअंदाज होते हैं। मर्द अपने जिस्म जिनसी सलाहियतों को कैसे समझते हैं, उन गलत मालूमात होती हैं। जिनसी एनाटमी लज्जत के बारे में दुरुस्त मालूमात की भी कमी उज़र तरास के साइज और जिनसी तस्लीम में उसके किरदार के बारे में गलतफहमियों में हिस्सा डाल सकती है। आखिर में एक बड़े उज़ूर तनासर की ख्वाहिश ज़बानी की बजाय नफ्सियाती मामले की वजह से होती है। कारकर्दगी की बेचैनी भी एक मसला है। ये नफ्सियाती दबाव कारकर्दगी की परेशानी का बायस बन सकते हैं। आर्गन के बड़ा करने की एक खास वजह सिर्फ और सिर्फ मर्द में किसी सांस कमतरी का होना, औरत पर रोग और सांस बढ़तरी और अजियत देकर खुश होना है। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पीनस का साइज कम होने से एनवायरनमेंट में औलाद की पैदाइश में कोई मसला पैदा नहीं होता, क्योंकि इस दोनों पार्टनर की सेटिस्फेक्शन के लिए और चीज़ों की ज़रूरत होती है। और फीमेल जिस्मानी साख ऐसी होती है, छोटे साइज वाले बड़े साइज वाले से ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल के जिन हिस्सों में खुशी और लुत्फ देना होता है इतनी अंदर गहराई में नहीं होते। ये आपके जहन का फतूर है, या फिल्मों या पोर्न वीडियो देखकर या लोगों की बातें सुनकर आपका कम्प्लेक्स का शिकार हो रहे हैं। साइज से ज़्यादा ऐसे तरीके, टेक्निक अवामल हैं और जानकर या इन पर अमल करके दोनों पार्टनर हद से ज़्यादा खुशी और ज़्यादा देर तक एंजॉय कर सकते हैं। उर्दू अगर ज़्यादा मोटा या लंबा नहीं भी है, तब भी अगर सख्ती में मुकम्मल है तो वो भी मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। उर्दू की सख्ती को बरकरार रखना ही एक सेहतमंद मर्द की निशानी है। खास उर्दू साइज में ठीक हो मगर सख्ती बरकरार रखने की काबिल ना हो तो क्या फ़ायदा है ऐसे बड़े साइज होने का। मैक्रो पीनस याद रहे कि ऐसी हालत या उज़र तरासल और साइज से छोटा होता है, अक्सर हार्मोनल या जनियाती मामल की वजह से होता है। उज़र तरासल का साइज लोगों के दरमियान नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हो सकता है और तर्ज ज़िंदगी के बाद मामल और इलाके इस पर असरअंदाज होते हैं। और साइज उज़र तनासल एवरेज 3 इंच से 4 इंच से ज़्यादा हो सकता है। उज़र तरासल के साइज को मुतासर करने वाले मामल की अगर बात करें, इसमें जेनेटिकल असर सबसे ज़्यादा होता है। विरासती जीन्स उज़र तनासल के साइज और नशोनुमा के तयन में अहम किरदार अदा करते हैं। हार्मोन का बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। एंड्रोजन की सतह उज़र तनासल की नशोनुमा को मुतासर कर सकती है। अगर उम्र की बात करें, मर्दों की उम्र के साथ साथ उनके उज़र तनासल और खैसियत थोड़ा सा कर सकते हैं। वजन में इजाफा असरअंदाज होता है। पेट के निचले हिस्से में चर्बी जमा होने से उज़र तनासल छोटा दिखाई देता है। पायरोनी की बीमारी उज़र तनासल में दाग या टिशू या प्रोस्टेट सर्जरी जैसे हालात उज़र तनासल के साइज या ज़ाहिरी शक्ल को मुतासर कर सकते हैं। अद्वियात का इस्तेमाल उज़र तनासल के सिकुड़ने और दीगर जिनसी अमराज में गंजमन को रोकने वाली अद्वियात उज़र तनासल पर असरअंदाज होती हैं। कुछ अद्वियात उज़र तनासल में खून के बहाव को भी कम कर सकती हैं और जिनसी कारकर्दगी को मुतासर करती हैं, बशमूल उज़र तनासल की ताकत और साइज समेत। तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी उज़र तनासल के साइज पर असरअंदाज होती है। सिगरेट नोशी का तल्लुक उज़र तनासल की खराबी से भी हो सकता है। सिगरेट नोशी के केमिकल उज़र तनासल में खून की नालियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गाइडलाइन अपने पार्टनर पर एतमाद करें, उसके साथ ज़हनी हमआहंगी पैदा करें, वर्जिश करें, ज़्यादा पानी गाइडलाइन अपने पार्टनर पर एतमाद करें, उसके साथ ज़हनी हमआहंगी पैदा करें, वर्जिश करें, ज़्यादा पानी पिए, अपने लाइफस्टाइल पर गौर करें, कोई गेम करें, लंबी वॉक करें, डंड लगाएं, रस्सी कूदें, तैराकी करें और अपने आर्गन की ऑलिव ऑयल के साथ मसाज करें, अपना वजन कम करें। और कोई आपको बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोई और बीमारी है, इसका इलाज करें। खुश रहें और अपनी नींद पूरी करें। आप कुछ एहतियात कर सकते हैं। अपनी नींद पूरी करें, हमेशा खुश रहें और नशा और अशियात से बचें। चाय, कॉफ़ी, शराब ना लें, सिगरेट ना पिएं, नाक के नीचे से हर हफ्ते सफाई करें, गंदे माहौल, गंदी सोबत से बचें, पोर्न लिटरेचर, फिल्मों से बचें, मोबाइल
कम से कम इस्तेमाल करें, अपना जहन साफ रखें, अपना वक्त तफरीह में या प्रोडक्टिव कामों में इस्तेमाल करें। खुराक की अगर बात करें, पानी ज़्यादा पिएं, वर्जिश करें, इसके साथ साथ गोश्त, अंडा, मछली, ताज़ा फल, दूध, पनीर, मक्खन, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट ज़्यादा लें, बादाम, पिस्ता, अखरोट, किशमिश, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करें। जैतून का तेल खाएं, खजूर खाएं, चने और शहद खाएं। अगर आप उस नाजर के साइज के बारे में फिक्रमंद हैं तो याद रखें कि ज़रूरी है उस नाजर के साइज में तगय्युरात मामूल के मुताबिक हैं, और बहुत से मर्दों को लगता है कि उनका साइज आम हाथ के अंदर है। अगर आपको खदशात हैं या अपने वजूद तनासुल के साइज, ज़ाहिरी शक्ल या फंक्शन में कोई अहम तब्दीली महसूस करते हैं, आप इस मसले में होम्योपैथी आपकी मदद कर सकती है। ऐसी मेडिसिन मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके साइज को तब्दील कर सकती हैं बल्कि उनकी पावर को भी बढ़ा सकती हैं। उनके इस्तेमाल से कोई बैड इफेक्ट्स भी नहीं है। इनमें बहुत सी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें एक मेडिसिन मौजूद है जिसको एपिमेडियम क्यू ताकत में इस्तेमाल करते हैं। ये दवा उज़्व तनासुल की गर्दिश को बेहतर बनाती है। इस तरह उज़्व तनासुल जिनसी साथ को बढ़ाती है। ये टेस्टोस्टेरोन के खराज को भी बेहतर बनाती है। वो बेहतर जिनसी ख्वाहिश और जोश के लिए ज़रूरी है। इसके साथ दूसरी मेडिसिन जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, तो सब्ज़ सैलोलिटा है। ये होम्योपैथिक इलाज खून के बहाव को बेहतर बनाती है, पेशाब के इन्फेक्शन के इलाज के अलावा हार्मोनल तवाज़ुन को फ़रोग़ देती है और जिनसी कारकर्दगी बेहतर करती है। एक और मेडिसिन जो अलामात के मुताबिक इस्तेमाल की जाती है, जिनको बाइलोबा है, ये मौसल मेडिसिन है जो खून की गर्दिश और ऑक्सीजन को बेहतर बनाती है और वक़्त को बढ़ाती है। एक और मेडिसिन कस्कूटा चेनेसिस, ये स्पर्म के कबल डेड होने में ताखीर और कबल इंजाल को रोकती है और ज़हनी तनाव को दूर करता है और शराबी निज़ाम के काम को बेहतर बनाता है। उसने तनाव को बड़ा करने, बेहतर कारकर्दगी में मदद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके और मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, रामायना है। ये बेचैनी, डिप्रेशन में कमी, जिनसी कमी उसको पूरा करती है और इस मसले में के लिए बहुत कारआमद साबित हुई है। शोगागंधा जिनसिंग के नाम से भी जाना जाता है। ये होम्योपैथिक इलाज इस सूरत में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ स्पर्म कसाफत कम हो या सोचने की सलाहियत में कमी, कबल अज़ वक़्त इंजाल और कमज़ोर उज़्व तनासुल का मसला हो। साइडोनिया वल्गैरिस क्यू इस मर्ज़ में ये दवा का बहुत अहम रोल है। पीने के अलावा इसे चंद कतरे जैतून के तेल में डालकर उसकी मालिश की जाती है। हम एक कंपाउंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो इस मसले में काफ़ी फ़ायदेमंद है। एपिमेडियम क्यू, जिनको गुलाबा क्यू, डामना क्यू, साइडोनिया वल्गैरिस क्यू, इन चारों मेडिसिन को 2 में बराबर मकदार में मिक्स करें और अच्छी तरह हिलाकर इस कंपाउंड के 20 कतरे थोड़े से पानी में मिलाकर दिन में 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा हम एग्नस कार्टस, लैकोपोडियम भी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि तमाम मेडिसिन आपके नॉलेज के लिए, किसी भी मसले की सूरत में अपने डॉक्टर से रब्ता करें। शुक्रिया।